اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر ستیہ ملک نے آج نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ انہوں نے جموں کشمیر کی صورتحال سے وزیر داخلہ کو واقف کرایا اور امرناتھ یاترا کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ امرناتھ یاترا پہ ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اس کو سفل کریں گے۔ چناؤ کے بارے میں میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، چناؤ اس پہ کوئی چرچا نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے، آج اہم بات چیت تھی، کیا کیا ڈسکشن تھے؟ کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کافی آتنکی مارے جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا پلان رہے گا؟ بیسکلی آئی بریفڈ ہم اباؤٹ دا گراؤنڈ سچویشن، جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ ان کو بتایا، نوٹ بھی دیا سارا کچھ، کیا وہاں حالات ہیں، ساری چیزیں وہ بتائیں، اور زیادہ تر تو بات انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے اسی کی سراہنا کرنے میں چلا گیا۔ کیونکہ ایک سال ہو چکا ہے آپ کے پریزیڈنٹ رول کے بارے میں، ایک سال ہو چکا ہے، تو اسمبلی الیکشن کے چناؤ کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں، کبھی کوئی سپٹمبر بول رہا ہے، کوئی نومبر۔ میرا سبجیکٹ الیکشن کمیشن جب طے کرے گا تب چناؤ ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں نے ان کو وہاں ایک تو پہلی چیز تو ان کو بدھائی دینی تھی، وہ سردار پٹیل کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، بڑا دن ہے ہمارے لیے، ان کو بدھائی دی، ان کو جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا الیکشن کو، جس طرح کیمپین کو کنڈکٹ کیا، جس طرح ہر بھارتی کو بھارتی کی طرح محسوس کرایا، اس کی مبارکباد دی۔ مول تو یہی تھا۔ کشمیر کی تو جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس پہ میں نے ان کو بریف کیا، جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ بریف کیا، جو لوگ سوچتے ہیں وہ بتایا، دیٹس آل۔ امرناتھ یاترا کی ہماری بہت اچھی تیاری ہے اور لوگوں نے سہیوگ کیا، تو جیسے پچھلے سال سفل ہوئی تھی ایسے ہی اس بار بھی ہوگی۔ مرکز میں بی جے پی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر کے تئیں سخت رویہ اختیار کرنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس بار بی جے پی کا رویہ کشمیر کے تئیں اچھا رہے گا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو ریاست کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ ہم تو امید یہ کریں گے کہ ان کا رویہ صحیح رہے گا، کیونکہ جتنا صحیح ان کا رویہ اچھا رہے گا اتنا لوگوں میں بھی ایک نئی امیدیں ہوں گی۔ آج ہم ایک نئی امید سے شروع ہوئے ہیں کہ وہ ریٹورکس ختم کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈران نریندر مودی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات سے پہلے این سی اور دیگر پارٹیاں پیپلز کانفرنس پر بی جے پی کے ساتھ رابطہ رکھنے کا الزام عائد کر رہی تھیں، لیکن اب وہ خود ہی بی جے پی لیڈروں سے ملاقات کے لیے لائن میں کھڑی ہیں۔ ایک جنگ چھیڑی تھی پارلیمنٹ کے الیکشنز میں، اور اس حد تک کہ وہی جیسا کہ ان کو آنکھیں بھی نہیں ملانی تھی، بلکہ انہوں نے پیپلز کانفرنس پر بہت سے حملے کیے کہ ان کو بی جے پی کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے۔ حالانکہ بی جے پی نے وادی میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیے تھے، لیکن آج حیرانگی کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ اس وقت نیشنل کانفرنس کے لیڈر، چاہے فاروق عبداللہ ہے، عمر عبداللہ ہے یا دوسرے محبوبہ مفتی، یہ سب جو ہے، ایون ایک نوجوان جو کل ہی اب ابھرا ہے وہ بھی دوڑ میں ہے، فیصل صاحب، کہ اس وقت وہ بی جے پی کے ساتھ ملاقاتیں کے لیے ترس رہے ہیں، لائن میں بیٹھے ہیں۔ سانبا میں کانگریس کے ضلع صدر سردار منجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں دوسری پارٹیوں سے اتحاد کرنے سے کانگریس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹیوں کی بیان بازی کا خمیازہ کانگریس کو بھگتنا پڑا ہے۔ منجیت سنگھ نے مزید کہا کہ افسپا پر کانگریس کے موقف کا بھی بی جے پی نے فائدہ اٹھایا۔ اس موقع پر منجیت سنگھ نے پارٹی کارکنان کو اسمبلی انتخابات کی تیاریوں میں جٹ جانے پر زور دیا۔ طریقے سے آسپا کے بارے میں بات کی گئی تو اس کو ضرور لوگوں نے اس کو ادروائز لیا گیا، اس کا ضرورت نہیں تھی یہ بات کرنے کی، جس کو نریندر مودی جی نے پورے دیش میں ایکسپلائٹ کیا۔ اسی طرح جو ہماری الائیڈ پارٹی یہاں تھی، جب اس نے یہ بات کی کہ یہاں 2 پردھان منتری ہوں گے الیکشن کے بعد،
تو اس کو بھی انہوں نے یہ ایکسپلائٹ کیا کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ ہے جو 2 پردھان منتری چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ غلط فہمیاں رہی. مجھے بالکل اس کا بھی یہاں پہ نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے سمے میں مضبوطی کے ساتھ کانگریس جو ہے وہ آگے آئے گی اور لوگوں کے لیے پہلے بھی سنگھرش کرتی رہی ہے, آگے بھی سنگھرش کرتی رہے گی. نانرترال میں کل ہوئے انکاؤنٹر میں جیش محمد تنظیم سے وابستہ 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں. مہلوکین میں ایک مقامی ملیٹنٹ یاور احمد نجار ساکنہ ڈار گنائی گنترال اور دوسرے کا تعلق شوپیان سے بتایا جاتا ہے. اس انکاؤنٹر میں غلام قادر گنائی کا مکان بھی تباہ ہو گیا ہے. اسی مکان میں ملیٹنٹوں نے پناہ لی تھی. اس انکاؤنٹر کے بعد آج ترال میں مکمل ہڑتال رہی. اسی کی وجہ سے معمولات کی زندگی بری طرح متاثر رہی. علاقے میں تمام کاروباری ادارے بند رہے. سڑکوں سے ٹرانسپورٹ غائب رہا. علاقے میں کل شام سے ہی انٹرنیٹ خدمات بند ہیں. سالانہ امرناتھ جی کی یاترا کے سلسلے میں جموں کے بیس کیمپ پر یاتریوں کو ہر ممکن سہولیات میسر کرنے کے لیے ان دنوں انتظامیہ کئی قدم اٹھا رہی ہے. جموں کے یاتری نواس کی تجدید و مرمت کا کام جاری ہے. ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے یاتریوں کی سہولیت کے لیے مختلف سہولیات فراہم کرنے کا کام جاری ہے. اس سال یاتری نواس میں گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے معقول تعداد میں اے سی نصب کیے گئے ہیں. پینے کے پانی اور بجلی کی بلا خلل فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پورے یاترا روٹ پر یاتریوں کو مختلف سہولیات میسر کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جموں کے ڈویژنل کمشنر سنجیو کمار ورما نے نیوز 18 اردو کو بتایا کہ انتظامیہ یاتریوں کے استقبال کے لیے تیار ہے. بیس کیمپ سے شروع کریں گے اگر تو اس کا بھی رنگ روگن کیا جا رہا ہے. خاص کر سینیٹیشن یونٹس پہ ہماری توجہ رہے گی. صاف ستھرے ہوں, اے سیز لگائے گئے اس ٹائم ہالز میں, تو یہ ایک تھوڑی بہتری لائی گئی ہے. صاف صفائی کا بھی انتظام رہے گا. دوسرا, جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لاجمنٹ سینٹرز ہیں ہمارے جموں میں, ان پہ بھی ان کو تھوڑا سا امپروو کیا جائے گا. اور رامبن کے پاس جو ایک بہت پرانی سرائی تھی اس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے, تاکہ اگر بارش کے, آپ کو پتہ ہر سال یہ رہتا ہے اور اس سال بھی میں یہ نہیں بولوں یاترا روکنی پڑتی ہے کیونکہ موسمی حالات کی وجہ سے, تو ان کو زیادہ کمفرٹ ہوگا ان یاتریوں کو. واش روم بنائے جا رہے ہیں, سینیٹیشن یونٹ سوچھ بھارت کے مادھیم سے, اور جو ہمارے پاس باقی کچھ اس طرح کی اسکیمز ہیں یہاں اور کنٹریبیوشن کر کے. اور ادھمپور میں بھی اس طرح سے 7-8 یونٹ بنائے جائیں گے. رامبن میں بھی بنائے جا رہے ہیں, جموں میں بھی, تاکہ پورے سرکٹ میں جہاں تک یاتری جائے اس کو سویدھا ملے. تحصیلدار بڈگام نصرت عزیز نے آج فرینڈز کالونی ہمہامہ میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف مہم چلائی. ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر کی ہدایت پر یہ مہم چلائی گئی. اس موقع پر تقریباً 6.5 کنال اراضی کو قابضین سے بازیاب کیا گیا. اس کالونی میں غیر مجاز ڈھانچوں کو منہدم بھی کیا گیا. تحصیلدار بڈگام نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. خوش ہے کیونکہ یہ ایلیگل کنسٹرکشن ختم ہو گئی ہے. یہاں پر جو یہ لینڈ ہے یہ بہت سے کاموں میں ضرورت لگ جائے گا, چاہے سکول ہو, چاہے کمیونٹی ہال ہو, چاہے قبرستان ہو, چاہے اور کوئی بھی جو گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گا کسی اور چیز میں بھی, یہ اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. یہ تو خالی ہوا ہے لینڈ, یہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, لینڈ گریبرز ہیں. میرے سے پہلے بھی 2 مہینے ہوئے ہیں میری پوسٹنگ کو. میرے سے پہلے بھی یہاں لوگ تعینات تھے ایز اے تحصیلدار, ریونیو آفیسر تھے, سارے ایگزیکٹو یہ میونسپلٹی والے تھے. انہوں نے کیوں نہیں جرت کی تار ہٹانے کی؟ انہوں نے کیوں نہیں, انہوں نے کیسے دیا ابھی تک قبضہ ہونے؟ آج جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو اب میرے خلاف سوشل میڈیا میں باقی چیزوں میں, کیونکہ میں ان کے ساتھ مل نہیں پا رہی ہوں, میرا تو اپنا کچھ ذہنی کوفت ہو رہی ہے ان سے بات کرنے. آپ نے دیکھا نہیں کیسا لہجہ, کس لہجے سے بات کر رہے تھے یہ. میں آفیشیل ڈیوٹی نبھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو میری ڈیوٹی پسند نہیں ہے آپ مجھے ہٹا دیجیے. کہا جاتا ہے کچھ انفلوئنشل لوگ ہیں جنہوں نے اس پر قبضہ کیا. یہ تو انفلوئنشل کال نہیں ہے, یہاں بات کرنا بھی مشکل ہے, لیکن ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم ہر باری آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہیں. ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر سعید عابد رشید نے ناجائز منافع خوری اور غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے. ڈی سی نے افسران کو ایک میٹنگ میں خصوصی ہدایت دی کہ وہ ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائیں.
ईद उल फित्र के पेश नज़र जिला इंतजामिया पुलवामा ने नाजायज मुनाफाखोरी और गैर मयारी अशिया की इतला फराहम करने के लिए फ़ोन नंबरात भी शाया किए हैं। नंबरात हैं 9419070953, 01-933-24-1243। whatever needs to be done to make sure that food adulteration को कर्ब किया जाएगा वो किया जाएगा, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रोसीड इन अ हार्श मैनर अगेंस्ट एनीबडी जो फूड एडल्ट्रेशन में मुब्तला पाया गया, क्योंकि ये हमारे माशरे में नासूर की तरह फैल रहा है और उसको अरेस्ट करना, इस ट्रेंड को अरेस्ट करना लाजमी है। एडमिनिस्ट्रेशन आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। आवाम को जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी पेश आती है, खा वो कहीं रोड्स का मामला है, कहीं सैनिटेशन का मामला है, कहीं बिजली का है या पानी का मामला है, वो हमारे साथ हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कायम करके इमीडिएटली उसका अजाला करा सकते हैं इंशाल्लाह। कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वक्त आने पर यहाँ के लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश करके इंसानियत के अलम को बुलंद रखा है। पहलगाम इलाके का रऊफ डार इसकी ताज़ा मिसाल है। पेश मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। अनंतनाग के दूर उफ्तादा इलाके येंट पहलगाम के रऊफ डार जिंदगी को खैराबाद कहने के बाद भी हमेशा लोगों की यादों में अब जिंदा रहेंगे। रऊफ ने अपनी जान का नजराना पेश करके ऐसे लोगों की जिंदगी बचाई जिनके साथ उनका न तो कोई खून का ही रिश्ता था और न ही कोई मजहबी रिश्ता। रऊफ बहैसियत राफ्टिंग ऑपरेटर अपनी रोजी रोटी कमाने में मशगूल थे कि इस दौरान कोलकाता से आए एक सयाह जोड़े ने उन्हें राफ्टिंग कराने की गुजारिश की। हालांकि रोजा खोलने का वक्त करीब ही था, लेकिन इसके बावजूद रऊफ ने कश्मीर की मेहमान नवाजी की रिवायत और अपने पेशे वराना फराइज को रवा रखते हुए इस सयाह जोड़े को राफ्टिंग कराने के लिए हामी भर ली। लेकिन सद अफसोस के इस बार दरियाए लिदर की तेज लहरें रऊफ की तकदीर के मुखालिफ चली। ये राफ्टिंग रऊफ का आखिरी सफर साबित हुआ। रऊफ का राफ्टिंग बोट दरियाए लिदर में पलट गया। दोनों सयाहों और दीगर 3 साथियों के साथ रऊफ दरियाए लिदर में गिर गए। सयाह लहरों के तेज बहाव में बह गए। इस दौरान इंसानियत का दिल रखने वाले रऊफ और उनके साथी आरिफ ने अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों सयाहों को तो बचा लिया, लेकिन बदकिस्मती से रऊफ अपनी जिंदगी की जंग हार गए। सयाहों की जान बचाते बचाते रऊफ तेज लहरों में गर्क हो गए। यन्नर पहलगाम इलाके के रूफ डार ने कश्मीरियत और इंसानियत की एक अजीम मिसाल पेश करके अपनी जान दी। और जिस वक्त ये सानिया पेश आया उस वक्त रूफ का एक दोस्त उसके साथ था और जो चश्मदीद गवाह है किस तरह से रूफ ने इन टूरिस्ट की जान बचाई। जी आप बताइए कि किस तरह ये वाक़या पेश आया और क्या हुआ था। एक्चुअली सर हमारा क्लोजिंग का टाइम था, तो हमने एक राफ्ट क्लोज किया था, तो फिर 2 गेस्ट आए थे, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमें राफ्टिंग करने का बड़ा शौक था, तो हमें राफ्टिंग करवाए। फिर रूप साहब बड़ा शौकीन था, तो उसने में कोई बात नहीं हम करवाते हैं। तो फिर हम ऊपर चले जहाँ से स्टार्टिंग होती है राफ्टिंग, तो वहाँ पे चले, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा थी, तो हम 2 गाइड और 2 असिस्टेंट गाइड साथ में चले। तो पानी का फ्लो बहुत तेज़ था, उसकी वजह से बोट फ्लिप हुआ है। तो टूरिस्ट बाहर आए, तो फिर हम सब ने पूरी कोशिश की कि हम टूरिस्ट को बचाएं। तो उसमें रूप साहब का ज़्यादा किरदार रहा कि उसने ज़्यादा हमसे बेटर कोशिश की। रऊफ की इस कुर्बानी ने कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल को फिर से जिंदा कर दिया। उनके साथी और इलाके के लोग रऊफ की इस कुर्बानी को अजीम करार दे रहे हैं। रऊफ की इस कुर्बानी ने कश्मीर के बारे में मनफी सोच रखने वालों को भी माकूल जवाब दे ही दिया। तो हमें बहुत नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने बोर्ड किया, उसके बाद ही जैसे राफ्ट निकल गया, अनफॉर्चुनेटली फ्लिप हो गया। तो इन दोनों लड़कों ने बोट को, इन 2 टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान पे खेला। तो इसमें एक लड़के ने बोट पे सब आदमी को लाया, दूसरा ये रूफडार ने भी बहुत मेहनत की उनको बचाने के लिए, जिसमें ये बेचारा होल में फंस गया। जो हमारे टूरिस्ट हैं, इंडिया के हमारी जान है, हम उनको कहते हैं यू शुड कम एंड एंजॉय कश्मीर। हमें टूरिस्ट के साथ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये इतना अमीर घराने का निगार का नहीं है, लिहाजा ये बेचारा पढ़ता था, अयाल भी इसके पास है, इसको थोड़ा अगर गवर्नमेंट कुछ मदद करेगा, क्योंकि किसी कश्मीर के लिए अपनी जान दे दिया मुल्क के लिए, और इसने 2 टूरिस्टों को बचा लिया।
रऊफ ने 2 गैर रियासती सयाहों की जान बचाकर इंसानियत की शानदार मिसाल कायम की, लेकिन हाँ, उनकी बेवक्त मौत ने उनके अफराद खाना को जिंदगी भर न भरने वाला जख्म दे दिया। रऊफ की अहलिया, उनका बेरोजगार भाई और उनके बुजुर्ग वालिदैन, सभी की आंखें नम हैं और उनके दर्द की दास्तान को बयान भी कर रही हैं। इफ्तियार का टाइम था तो मेरा भाई ने दो टूरिस्ट थे तो उनका जान बचाया था। तो उसके बाद अब मुझे यही कहना चाहता है कि वो बड़ा मेहनती था और उसका कोई क्या, अब तो मेरा वो बड़ा भाई था तो मेरा जो बाप है वो बूढ़ा है, माँ भी बूढ़े है। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि वो किसी भी सूरत में उसकी जानकारी की। रऊफ के गमज़दा अहल-ओ-अयाल की सरकार और इंतजामिया किस तरह भरपूर मदद करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। रऊफ की बहादुरी के एतराफ में सरकार ने फौरी तौर पर 2 लाख रुपया मुआवजे का ऐलान किया है। गवर्नर ने रऊफ की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए उनके अहल खाना को 5 लाख रुपये की माली मदद देने का ऐलान किया है। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने भी रऊफ को एक हीरो करार दिया है, जिसने पूरे वादी का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। डीसी ने कहा कि लवाहिकीन को हर तरह की मुआवनत करने की कोशिश होगी। रऊफ का नाम कौमी बहादुरी अवार्ड के लिए तजवीज़ किया जाएगा। सल्यूट पेश करता हूं कि उसने अपनी जान का नजराना पेश करके उन सारे टूरिस्ट को जो उस रैफ्ट में बैठे थे उनको बचाया और इंश्योर किया कि उनकी जान बचे। हैव टेकन अ स्पेशल व्यू और हम उनको एक्स ग्रेशिया की असिस्टेंस भी दे रहे हैं एज अ स्पेशल केस, एज अ यूनिक केस, बिकॉज उसने ऐसा काम किया है कि जो अपने आप में एक नमूना है। दूसरा, उसको हम रऊफ को जो है वो बादज मर्ग ब्रेवरी के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा, ब्रेवरी अवार्ड के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि उसको कंसिडर किया जाए। पीडीपी के तर्जुमान आला रफी अहमद मीर ने रऊफ को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर अल्ताफ कल्लू ने भी रऊफ को एक बागैरत शख्सियत करार दिया है। कल्लू ने उन्हें कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब करने की गुजारिश की है। मैं तमाम इस फैमिली को अपनी तरफ से और उनके लवाहिन को हमदर्दी का इजहार करता हूँ। गवर्नमेंट ने चूँकि इसका एक सर्टिफिकेट देना फैसला किया और कुछ कैश रिलीफ भी है, मैं आपकी माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस घर के लिए ऐसे रोज़गार का कोई मौका तलाश किया जाए ताकि बाकी जो यहाँ लोग रहने वाले हों, जो इस ट्रेड से वाबस्ता हो और इस पसमानदा इलाके के रहने वाले हों, उनकी भी हौसला अफजाई हो जाएगी और इस घर की भी हौसला अफजाई हो जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर सोफी यूसुफ ने भी रऊफ की शजाअत को कश्मीर की पहचान करार दिया है। उन्होंने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके, वही एक कमाने वाला था, उनके घर का जो है, उनका परिवार जो है वो अब नहीं चलेगा, उनको एक्स ग्रेशिया के तहत रिलीफ दिया जाए और दूसरा उनके एक घर की नौकरी भी दी जाए। और हमें पूरे इलाके को बड़ा सदमा हो गया है कि गौहर आज हमारे बीच में, रऊफ हमारे बीच में नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। श्रीनगर में मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए बनाई गई कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बिमना इलाके में कायम इस कॉलोनी में लोगों को आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनसे भारी रकम बतौर किराया और मेंटेनेंस फंड वसूल किया जा रहा है। उसके बावजूद कॉलोनी में न तो सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है और न माकूल बुनियादी सहूलियात। ड्रेनेज सिस्टम भी खस्ता हो चुका है। मैदान दलदल में तब्दील हो गया है और शाम होते ही मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद यहाँ डेरा जमा लेते हैं। कॉलोनी में मुकीम लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी जानिब तवज्जो दी जाए। उनका कहना है कि अगर मसाइल हल नहीं हुए तो वो क्वार्टर खाली करके बाहर आ जाएंगे। कोई टेक्नीशियन नहीं, कोई और पानी है इस वक्त बाहर निकल रहा है। ये पानी साइडों पे जमा हो जाता है। बहुत पुराना, ऐसे 20 साल पहले टैंक बना हुआ है, बल्कि 30 साल पहले। तो ये पानी जो बाहर से जो है ना, इसकी दीवारें आप देखिए बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हैं और ये बाहर से सारा पानी जो है इसका अंदर चला जाता है और वही पानी जो है गंदा हम पीते हैं। और जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं बाहर जाने वाला नहीं है।
और गटर का पानी भी है जो वो भी इसी टैंक में आकर पड़ता है और फिर वही पानी जो है मिक्स होता है तो सप्लाई होता है और इतना बदबूदार पानी है कि हम पीना तो पीना है, उसके पानी को देख या सूंघ भी नहीं सकते हैं। ये क्वार्टर जब बने, ये कंप्लीट हुए 87 से 90 तक, और उस वक्त जो भी ड्रेनेज और जो भी पाइपिंग सप्लाई पाइपें बिछी हुई थी, तब से आज तक उनको रिपेयर नहीं किया गया, उनको ट्रांसफर मतलब चेंज नहीं किया गया। हमने बहुत बार कंसर्न अथॉरिटी से मैटर टेक अप करके उनके साथ रवाबित करके हमें जब कोई भी रेस्पॉन्स प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम मजबूर हो गए कि हम उनको मीडिया के जरिए से उन तक ये बात पहुंचाएं कि हम किस हाल में, किस सिचुएशन में हैं। 17 जनवरी को जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा जी, तो किसी ने मेरे घर का ताला तोड़ के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव चोरी करके ले गया। उसके बाद मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। हम सीखी थी कि यहाँ पे घोड़े और ये सब चीज़ें रहती हैं, दीवारें तोड़ी हुई हैं, लेकिन उनका इसमें कोई मेंशन नहीं किया उन्होंने। ये उनका रिप्लाई है, आप इसको जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने सिक्योरिटी का मेंशन किया है और जबकि हमने खुद अपनी सिक्योरिटी और ये मेरा तो लेटर था इसमें जो मैटर है वो आप देख सकते हैं जी, और इसके अगेंस्ट उनका जो रिप्लाई आया था वो भी आप नोट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में सहर खानी की कदीम रिवायत अब भी बरकरार है। सहर खां रात के आखिरी हिस्से में ढोल बजाते हुए रोजेदारों को सहरी के लिए जगाने की खिदमत अंजाम देते हैं। पेश है बारामूला से सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। कलारूस कुपवाड़ा के रहने वाले शेरबाज खान वादी में सहर खाने की कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। शेरबाज खान हर साल माह रमजान में रात के अंधेरे में अपने ढोल के साथ गली कूचों में निकल जाते हैं और रोजेदारों को सहरी के लिए जगाते हैं। शेरबाज खान इन दिनों बारामूला के मुख्तलिफ महलों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं, तो यहाँ मैंने डेरा किया है। हम 5-7 आदमी हैं। ये हम सार खानी सदियों पुराने करते आते हैं। हम ये ढोल बजाते हैं, सार खानी करते हैं। लोगों के लिए भी फायदा हो जाता है, हमारा भी फायदा है इसमें। उठ जाते हैं, नफल पढ़ते हैं, तजब पढ़ते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कोई थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, तो हम भी निकलते हैं, हमारा भी फायदा है। कितने बजे निकलते हैं? जी हम 2 बजे निकलते हैं। लोगों का कहना है कि हालांकि मौजूदा दौर में नींद से बेदार होने के लिए मोबाइल फोन और दीगर आलात दस्तयाब हैं, लेकिन वादी की कदीम रिवायतों को जिंदा रखना भी जरूरी है। मोबाइल के ज़रिए या बहुत से तरीक़ों से लोग शहर में उठने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में ये सहर खाने का जो रिवाज है, सहर खान जो लोग आते हैं, ये बहुत पुराने वक्त से आ रहा है। रमज़ान के बाद ये गाँव ये घर घर महला महला जाकर लोगों से वो फिर वो तबरकन कुछ कोई पैसे लेते हैं, कोई चावल देते हैं, कोई कुछ और देते हैं और नजराने के तौर पर लोग उन्हें पेश करते हैं ताकि उनका जो मेहनताना है, उनका जो काम है, उसका थोड़ा बहुत बदला उनको दिया जा सके। शेरबाज खान का कहना है कि रोजेदारों को सहरी के लिए जगाने का सिला उन्हें इस माह के अख्तिताम पर मिलता है। रोजेदार अपनी खुशी से जो भी नजराने देते हैं वो उसे कबूल कर लेते हैं। बहुत नेक सलूक, बहुत अच्छा सलूक होते हैं, बहुत अच्छा सलूक। जब हम ईद से पहले निकलते हैं तो हमें हर एक चीज़, पैसा भी देते हैं, चावल भी देते हैं, ये पुराने वराने कपड़े भी देते हैं। बहुत अच्छा सलूक हमारे साथ होता है। हम बोर्ड बेक इलाके के रहने वाले हैं, तो हमारा साल भर का रिज़्क निकल जाता है। माह रमजान में सहर खाने की रिवायत मुनफरिद है और कुछ लोग इस कदीम रिवायत को जिंदा रखने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। यतीमों के लिए काम करने वाली एक बैन अक़वामी तंजीम की जानिब से म्युनिसिपल पार्क श्रीनगर में यतीमों के लिए दावत इफ्तार और ईदी की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कई यतीम बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और अपने मुजाहिरे से हाज़रीन को खूब महजूज किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। यतीम बच्चों में तंजीम के चेयरमैन अनीस मोहम्मद मूसा ने ईदी तकसीम की। कुरानंदाजी के जरिए एक यतीम खाने का नाम मुंतखब किया गया, जिसे एक वैन फराहम की गई। कुरा में मोहसिन अलबनात सिंहपुरा पटन का नाम उठा। तंजीम की तरफ से इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हर यतीम खाने को एक एक कंप्यूटर देने का भी ऐलान किया गया। तंजीम के चेयरमैन ने कहा कि अगर यतीम खानों को कोई खास इमदाद की जरूरत हो तो वो उनसे राब्ता करे। शुरा के लिए इशाइये का भी इंतजाम किया गया।
माह रमज़ान की मुनासिबत से कल्चरल अकेडमी की जानिब से सेमिनार हॉल में कसीर लिसानी मुशायरे का एहतमाम किया गया। उसमें उर्दू और कश्मीरी के साथ साथ रियासत में बोली जाने वाली दीगर जबानों के शोरा ने अपना नातिया कलाम पेश किया। फारूक नाज़की, नसीमा शिफाई, रुखसाना जबीन के अलावा वादी के कई मारूफ और नौजवान शोरा ने इसमें शिरकत की। उन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम की सदारत वादी के मारूफ ब्रॉडकास्टर, शायर और मुहक्किक गुलाम नबी ख्याल ने की। जीएन आतिश भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। माह रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना है। इस महीने के दौरान कल्चरल अकेडमी की तरफ से हर साल खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है। ये रिवायत इस साल भी कायम रही, जिसमें कुछ हमदिया महफिलें हमने आरास्ता की, कुछ नातिया महफिल आरास्ता की, कहीं कहीं पे बाकी जो छोटी मोटी कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुरान कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो आज यहाँ पे हमने एक कसीर लिसानी मुशायरे का एहतमाम किया है। और इस महफिल की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो हमारे जो मुस्तनद और काफ़ी सीनियर शोराए कराम हैं, उनके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे नौजवान शोराए कराम हैं, उन्होंने भी बड़े ही जोश, जज्बे और अकीदत के साथ अपना कलाम पेश किया और उनकी खातिर हौसला अफजाई भी हुई। जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन और रियासी कल्चरल अकेडमी की जानिब से श्रीनगर के इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में सहमाही अदबी रिसाला गाश की रस्म रोनुमाई की तकरीब मुनक्किद हुई। गाश को कश्मीर का पहला कश्मीरी अखबार होने का शरफ हासिल है, जो 1940 में शाया होता था। दूसरी जंग अजीम के वक्त ये बंद हुआ था। शायर कश्मीर के इस अखबार को अब रिसाले की सूरत में मंजर आम पर लाया गया है। ये रिसाला कश्मीर के इल्म और अदब के साथ साथ यहाँ की सकाफत और तमद्दुन के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करता है। तकरीब की सदारत मोहम्मद यूसुफ वटेंग ने की। रिटायर जस्टिस बशीर अहमद किरमानी मेहमान खुसूसी और गुलाम नबी ख्याल बतौर मेहमान जी वकार मौजूद रहे। शायर कश्मीर के नातिया कलाम को कश्मीर के मारूफ गुलकार राजा बिलाल ने पेश किया। डॉक्टर रफीजा राज, जीआर हसरत गड्ढा, अब्दाल महजूर, नईमा अहमद महजूर समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। गाश का ताज़ा शुमारा शाया किया है, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही आला तबात, आला किताबत, आला मतलब कागज़ वगैरह के साथ, तस्वीरों के साथ शाया हुआ है। और मैं समझता हूँ ये भी अगर जारी रहे तो कश्मीरी सहाफ़त का एक संग मील साबित होगा। तो जाहिर है तारीख़ के तालिब इल्म के लिए भी अब ये दिलचस्प रिसाला रहेगा, वो भी इससे इस्तिफ़ादा करेगा। इसी तरह तनकीद है, तहकीक है, उस तरह के मज़ामीन होंगे इसमें, आर्कियोलॉजी के हवाले। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने खनाबल के एंसू टावर में जश्न ईद नाम से मंसूब ट्रेड नुमाइश का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का मकसद ख़वातीन को बुनियादी सतह पर बाख्तियार बनाना है। सबा फरहत नामी एक मकामी खातून ने जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत की इस पहली नुमाइश का एहतमाम किया है। इसमें एक ही छत के नीचे ख़वातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल कायम किए हैं। ख़वातीन के लिए एक महफूज और दोस्ताना कारोबारी माहौल कायम करना इसका मकसद है। जम्मू के एक प्राइवेट स्कूल में आज यूथ पार्लियामेंट का एहतमाम किया गया। इस पार्लियामेंट के दौरान स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ शख्सियात का रोल निभाकर सवाल और जवाबात के एक सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वजीर आला कुवेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने इन बच्चों की काविशों को सराहना करते हुए ऐसे मजीद प्रोग्रामों के इनकाद पर जोर दिया। बाद में बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल के प्रिंसिपल एस पुरी ने इस मौके पर बताया कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद बच्चों को सियासी मालूमात फराहम करना है। नया प्लेटफॉर्म मिले, बच्चे भी हमारी राजनीति के बारे में जाने। हमारा जो इंडिया है यंग इंडिया है, तो यंगस्टर्स हैं, उनको सब पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या है, कौन सी ज्वलंत प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना कैसे करना है। क्योंकि राजनीति देश को आगे ले जाने में वो जो राजनेता रहते हैं वो सक्षम रहते हैं, इसलिए उनके बारे में जानना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में सोचना और देश के हित में सोचना, इस प्रकार की जो एक सोच है, एक कोशिश है, मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत है।
मागाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस पर पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीड़वा के लिए जदीद आलात से लेस एक एम्बुलेंस को वक्फ किया। उमर अब्दुल्ला, तनवीर सादिक, डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी भी मौजूद थे। लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने एनसी को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। फारूक अब्दुल्ला ने बीड़वा हल्के इंतखाब के लोगों का शुक्रिया अदा किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में तरक्की के लिए एजुकेशन और हेल्थ शोबे काफी अहम हैं।